یہ چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس ہے۔ بیجنگ اسٹوڈیو سے اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں زبیر بشیر۔ سب سے پہلے خاص خبروں کا خلاصہ۔ صدر شی جن پنگ کا چین کی رینمن یونیورسٹی کا دورہ، چین کے اندرونی معاملات میں مداخلت اور چین پر بہتان تراشی کو سختی سے مسترد کیا جاتا ہے، چینی وزارت خارجہ۔ اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا کثیر الجہتی کی مضبوطی کے لیے عالمی تعاون پر زور۔ آئیے اب خبریں سنتے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ 4 مئی یوتھ ڈے سے قبل چین کے صدر مملکت شی جن پنگ نے 25 تاریخ کی صبح چین کی رینمن یونیورسٹی کا دورہ کیا۔ انہوں نے یونیورسٹی کی ترقی کے بارے میں جاننے کے لیے اسمارٹ کلاس رومز، عجائب گھروں اور نظریاتی اور سیاسی کورسز کی لائبریریوں کا دورہ کیا۔ 25 مارچ کو صدر شی جن پنگ نے ایمانوئل میکرون کو ایک تہنیتی پیغام بھیجا اور انہیں فرانسیسی جمہوریہ کے دوبارہ صدر منتخب ہونے پر مبارکباد دی۔ شی جن پنگ نے نشاندہی کی کہ گزشتہ 5 سالوں میں ہماری مشترکہ قیادت میں چین اور فرانس کی جامع تصویراتی شراکت داری نے اعلیٰ سطح کی ترقی کو برقرار رکھا ہے۔ دونوں فریق مختلف شعبوں میں عملی تعاون کو مزید گہرا کرنے، وبا سے شانہ بشانہ لڑنے، کثیر الجہتی کی حفاظت کرنے، عالمی نظم و نسق کو بہتر بنانے، عالمی نظام میں نئے محرکات ڈالنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ شی جن پنگ نے زور دے کر کہا کہ چین اور فرانس دونوں آزادی اور خود مختاری کی روایت کے حامل بڑے ممالک ہیں۔ اس وقت بین الاقوامی صورتحال گہری اور پیچیدہ تبدیلیوں سے گزر رہی ہے اور چین فرانس تعلقات کی صحت مند اور مستحکم ترقی کی تصویراتی اہمیت زیادہ نمایاں ہو رہی ہے۔ میں نے چین اور فرانس کے تعلقات کو ہمیشہ تصویراتی اور طویل مدتی نقطہ نظر سے دیکھا ہے اور میں چین فرانس تعلقات کو نئی سطح پر لے جانے اور دونوں ممالک اور دنیا کے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے صدر میکرون کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ 25 اپریل کو چینی صدر شی جن پنگ نے آرٹی میشننگ اور انسانی صحت کی کمیونٹی کی تعمیر میں معاون بین الاقوامی فورم کی 50ویں سالگرہ کے موقع پر ایک تہنیتی خط بھیجا ہے۔ 25 اپریل کو چینی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ وین بین نے ایک رسمی پریس کانفرنس کی میزبانی کی۔ ایک رپورٹر نے سوال کیا کہ باؤ ایشیائی فورم کی سالانہ کانفرنس 2022 کی افتتاحی تقریب سے کلیدی خطاب میں صدر شی جن پنگ کی طرف سے تجویز کردہ عالمی سلامتی انیشیٹو کو بہت سے ممالک کے لوگوں کی جانب سے مثبت رد عمل حاصل ہوا ہے۔ کیا ترجمان یہ بتا سکتے ہیں کہ چین اس انیشیٹو کو کیسے نافذ کرے گا؟ وانگ وین بین نے کہا کہ صدر شی جن پنگ کی طرف سے تجویز کردہ عالمی سلامتی انیشیٹو کو کئی ممالک کے ماہرین، اسکالرز اور سیاستدانوں کی جانب سے گرم جوش رد عمل اور مثبت تبصرے ملے ہیں۔ یہ بڑے پیمانے پر خیال کیا جاتا ہے کہ یہ انیشیٹو نئی صورتحال کے تحت بین الاقوامی برادری کی مشترکہ سیکیورٹی ضروریات کی عکاسی کرتا ہے اور عالمی سیکیورٹی گورننس کے لیے ایک اہم اور مکمل حل فراہم کرتا ہے۔ یکجہتی اور تعاون کا نظریہ نہ صرف ایشیا پیسیفک خطے پر لاگو ہوتا ہے بلکہ دنیا بھر کے ممالک پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ اگر دنیا ایک زیادہ منصفانہ اور معقول نیا سیکیورٹی گورننس سسٹم نافذ کرنا چاہتی ہے تو اسے گلوبل سیکیورٹی انیشیٹو کے مطابق کام کرنا چاہیے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ گلوبل سیکیورٹی انیشیٹو امن، تعاون اور بین الاقوامی برادری کی مشترکہ خواہش کے مطابق ہے۔ 25 اپریل کو چینی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ وین بین سے معمول کی پریس کانفرنس میں ایک رپورٹر نے سوال کیا کہ حال ہی میں امریکہ اور یورپ نے تیسرا چائنا ڈائیلاگ منعقد کیا، جس میں تائیوان، سنکیانگ سے متعلق امور اور چین کی طرف سے غلط معلومات پھیلانے جیسے مسائل پر نام نہاد تحفظات کا اظہار کیا گیا۔ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ وانگ وین بین نے مذکورہ سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہم چین کے اندرونی معاملات میں مداخلت اور چین پر بہتان تراشی کے امریکی اقدامات کو سختی سے مسترد کرتے ہیں۔ چین نے اس معاملے پر سخت احتجاج کیا ہے اور اپنے پختہ مواقف کا اظہار کیا ہے۔ افغانستان میں گزشتہ چند دنوں میں ہونے والے بم دھماکوں میں بڑی تعداد میں شہری ہلاکتیں ہوئیں اور سیکیورٹی کی صورتحال بدستور تشویشناک ہے۔
22 اپریل کو افغانستان کے صوبہ قندوز کی ایک مسجد پر بمباری کی گئی۔ افغان عبوری حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اعلان کیا کہ بم دھماکے میں کم از کم 33 افراد ہلاک اور 43 زخمی ہوئے۔ اسی دن افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ایک یونیورسٹی کے قریب دھماکہ ہوا۔ 21 اپریل کو شمالی افغانستان کے صوبہ بلخ کے صدر مقام مزار شریف کی ایک مسجد پر بم حملہ ہوا، جس میں کم از کم 31 افراد ہلاک اور 87 زخمی ہوئے۔ اسی روز صوبہ قندوز کے صدر مقام قندوز میں ایک بس پر حملہ کیا گیا، جس میں 4 افراد ہلاک اور 18 زخمی ہوئے۔ 19 اپریل کو دارالحکومت کابل کے مغرب میں 3 دھماکے ہوئے۔ ان حملوں میں تربیتی مرکز اور لڑکوں کے ایک سیکنڈری اسکول کو نشانہ بنایا گیا، جس میں 5 افراد ہلاک اور 20 سے زائد زخمی ہوئے۔ 6 اپریل کو کابل کی ایک مسجد میں دھماکہ ہوا، جس میں 6 افراد زخمی ہوئے۔ 3 اپریل کو کابل کی سب سے بڑی کرنسی ایکسچینج مارکیٹ میں دھماکہ ہوا۔ وزارت داخلہ کے مطابق دھماکے میں کم از کم 10 افراد زخمی ہوئے۔ افغان سیاسی مبصر عبداللہ اکبری نے چائنا میڈیا گروپ کے ساتھ بات چیت میں حالیہ پے در پے بم دھماکوں کی شدید مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ دنوں ہونے والے سنگین بم دھماکوں نے افغان عوام کو خوف میں مبتلا کر دیا ہے۔ حملہ آوروں کا مقصد اسکولوں اور عبادت گاہوں پر حملہ کر کے لوگوں کی معمول کی زندگیوں میں خلل ڈالنا ہے، تاکہ طلبہ ذہنی سکون کے ساتھ اسکول نہ جا سکیں اور لوگ معمول کی عبادت کا فریضہ سر انجام نہ دے سکیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق یہ تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ طالبان افغانستان پر کنٹرول نہیں کر سکتے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوترس نے 24 تاریخ کو کثیر الجہتی اور پرامن سفارتکاری کے عالمی دن کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے بین الاقوامی برادری پر زور دیا کہ وہ کثیر الجہتی کو درپیش بڑے چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے تعاون کو مضبوط کرے۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کے قیام کے آغاز میں بین الاقوامی برادری کی جانب سے کثیر الجہتی سے متعلق کیے گئے وعدوں کی پاسداری نہیں کی گئی، اور کثیر الجہتی تعاون کے بنیادی اصولوں کو اقوام متحدہ کے قیام کے بعد سے سب سے زیادہ دباؤ کا سامنا ہے۔ انہوں نے عالمی برادری کو اتحاد سے موجودہ بحران کے اس لمحے کو کثیر الجہتی کے لمحے میں تبدیل کرنے کے لیے کام کرنے پر زور دیا۔ بین الاقوامی برادری کو ایک مزید مربوط اور جامع کثیر الجہتی کے لیے کام کرنا چاہیے۔ انہوں نے مختلف ممالک کی حکومتوں اور رہنماؤں پر زور دیا کہ وہ مذاکرات اور گلوبل سلوشنز کے لیے اپنے عزم کی تجدید کریں، کیونکہ یہ امن کا واحد پائیدار راستہ ہے۔ روس یوکرین تنازع کے بعد سے نیٹو نے مشرقی یورپ میں بڑی تعداد میں فوجی تعینات کیے اور یوکرین کو ہتھیاروں کی فراہمی کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ سرد جنگ کے اوائل میں امریکہ، برطانیہ، فرانس اور اٹلی سمیت 12 ممالک نے 1949 میں نیٹو کا قیام عمل میں لاتے ہوئے ایک فوجی اتحاد تشکیل دیا تھا۔ 1990 کی دہائی کے اوائل میں وارسا معاہدے کی تحلیل، سوویت یونین کے ٹوٹنے اور سرد جنگ کے خاتمے کے بعد بھی نیٹو نے اپنی توسیع پسندانہ سوچ جاری رکھی۔ سوویت یونین ٹوٹنے کے بعد نیٹو نے یکے بعد دیگرے 10 سے زائد ممالک کو اپنا حصہ بنایا اور اب اس کے 30 رکن ممالک ہیں۔ سرد جنگ کے خاتمے کے بعد نیٹو کا نقطہ نظر صرف یورپ تک محدود نہیں رہا۔ افغانستان کی جنگ، عراق کی جنگ، لیبیا کی جنگ سے لے کر روس اور یوکرین کے درمیان موجودہ تنازع تک نیٹو مسلسل دھمکیوں اور محاذ آرائی کو ہوا دے رہا ہے۔ بظاہر نیٹو کا اسٹریٹجک تصور نئے دشمنوں کی مسلسل تخلیق اور پھر ان سے لڑنا ہے۔ کچھ میڈیا اور تجزیہ گاروں نے نشاندہی کی ہے کہ سرد جنگ کی فرسودہ ذہنیت اور نظریاتی تعصب پر قائم رہتے ہوئے نیٹو کے اقدامات نے علاقائی اور عالمی امن و استحکام کو زہر آلود کیا ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا سیکیورٹی رسک بن گیا ہے اور بڑی تعداد میں ترقی پذیر ممالک کی خواہشات کے برعکس ہے۔ مقامی وقت کے مطابق 25 تاریخ کو یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کیف میں امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن اور سیکرٹری دفاع لوئڈ آسٹن سے ملاقات کی۔ بتایا جاتا ہے کہ زیلنسکی اور امریکی حکام نے دفاعی امداد، روس کے خلاف پابندیوں کو مضبوط بنانے، یوکرین کے لیے مالی مدد اور سیکیورٹی ضمانتوں پر بات چیت کی۔ یہ تھیں چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس سے اب تک کی اہم خبریں۔
国国际广播电台。 ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल का दोस्ती चैनल है। सुनते हो तो CRI को सुनिए, चलते हो तो चीन को चलिए। ये है हम सबका रेडियो चाइना रेडियो इंटरनेशनल। चीनी अवाम के माहो साल, मेहनत और जद्दोजहद की रोशी मिसाल, माजी की शाहराए रेशम से आज की इक्तिसादी शहरात तक, चीन शाहराए तरक्की पर। चीन में शब रोज रकम होने वाली कामयाबियों से इबारत। इस प्रोग्राम में आप जान सकेंगे चीन की तेज रफ्तार तरक्की का राज, मेहनत से जुड़ी चीन की रिवायात, हम ही है सकाफत, हम कदरे, हम तहजीबों के निशान, इंसानी अजमत, इल्म हुनर और फन के पासबान। सुनते हैं खबरों, तजज़ियों और तबसरों से सजा चाइना रेडियो इंटरनेशनल का खुसूसी सिलसिला चीन शाहराए तरक्की पर। चीन ने हकीकी मईशत के लिए अपनी माली मामलत को मजबूत बनाने के लिए कई इक़दाम किए हैं। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज की तरफ से मुश्तरका तौर पर जारी करदा एक बयान में कहा गया कि मुल्क की मुश्किलात में घिरी मार्केट के इदारों को रिलीफ देने, मईशत में बगैर किसी रुकावट के बहाव को यकीनी बनाने और बरामदात को फ़रोग़ देने के लिए माली मामलत में इजाफा किया जाएगा। चीन सनतों और कारोबारी इदारों और वबा से मुतासर होने वाले लोगों के लिए माली इमदाद में इजाफा करेगा, कर्ज़ों के पैमाने को बढ़ाएगा और हकीकी मईशत के लिए मुनासिब इंटरेस्ट रेट में रियायत देने के लिए मालियाती इदारों की रहनुमाई करेगा और माइक्रो और छोटी फर्मों के लिए जामे फाइनेंसिंग को बेहतर करने के तरीके नाफिज करेगा ताकि तरक्की का ये सफ़र जारी व सारी रह सके। आप प्रोग्राम समाअत फरमा रहे हैं चीन शाहराए तरक्की पर। इस प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में मैं हूं ज़ुबैर बशीर और मैं हूं शाहिद अफराज खान। सामीन मोहतरम, आज के इस प्रोग्राम में शामिल मौज़ूआत की तफसील कुछ इस तरह से है। मुस्तहकम मुआशी इशारिये चीन की तरक्की के अक्कास, चीन में खिदमात की तजारत का मुसलसल इस्तेहकाम, चीन और बेल्ट एंड रोड से वाबस्ता ममालिक के दरमियान वसी ताउन का सिलसिला जारी, छोटी सनतें बड़ी खुशहाली, मेलों और नुमाइशों का कारोबारी सरगर्मियों के फ़रोग़ में किरदार। सामीन मोहतरम, इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक खूबसूरत नगमा। सच्चा यार नहीं हर किसे नू मिलदा, मन मंगया दिलदार हर किसे नू नहीं मिलदा, मन मंगया दिलदार नहीं हर किसे नू मिलदा, मन मंगया दिलदार हर किसे नू नहीं मिलदा, मन मंगया
दूर वे। वेलकम बैक सामीन मोहतरम, आपको खुशामदीद कहते हैं। आप प्रोग्राम समाअत फरमा रहे हैं चीन शाहराह तरक्की पर ज़ुबैर बशीर और शाहिद अफराज खान के साथ। शाहिद साहब, चीन का जो तरक्याती तसव्वुर है वो एक ऐसा इश्तराकी तसव्वुर है जो मुल्क से शुरू होता है और फिर बढ़ते बढ़ते पड़ोसी ममालिक तक जाता है और फिर उसके बाद इसका ग्लोबल इम्पैक्ट हम देखते हैं। शेयर्ड फ्यूचर ऑफ मैन काइंड यानी बनी नो इंसान के हमनसीब समाज की सूरत में हमें यह नज़र आता है। इसका अगर हम मेन मंसूबा कहें जिसके ज़रिए चीन इस तरक्याती तसव्वुर को, जिसमें तमाम बनी नो इंसान के लिए मुश्तरका फ़वाइद हैं, तो वो बेल्ट एंड रोड है। तो बेल्ट एंड रोड ममालिक और चीन के दरमियान जो ताउन का सिलसिला है वो न सिर्फ जारी व सारी है बल्कि इसमें मुसलसल वसअत आ रही है। हालिया दिनों चीन के कौमी तरक्याती व इस्लाहाती कमीशन के तर्जुमान ने मीडिया ब्रीफिंग के दौरान बताया कि चीन ने बेल्ट एंड रोड की मुश्तरका तामीर के लिए 149 ममालिक और 32 बैनुल-अक़वामी तंजीमों के साथ 200 से ज़ायद ताउन की दस्तावेज़ात पर दस्तखत किए हैं। जी, और अच्छी बात यह ज़ुबैर साहब कि पाकिस्तान CPEC को हम कहते हैं कि ये BRI का फ्लैगशिप मंसूबा है और पाकिस्तान में भी हमने ये पेशरफ देखी कि हालिया जो इस वक्त नौमंतखब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब उन्होंने ध्यामिर बादशाह डैम का दौरा किया और वो भी इसी मंसूबे से जुड़ा पाकिस्तान में तवानाई के बहरान पर काबू पाने का एक अहम मंसूबा है। और साथ साथ कराची में हमने ये भी देखा कि एक जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसका यूनिट 3 भी फ़ाल हो चुका है, वो चीन की टेक्नोलॉजी है हवालुंग 1। तो ये सारे मंसूबे ज़ाहिर करते हैं कि इस वक्त जो इसके समरात हैं वो अवाम के वसी तर मफाद में हैं। और पाकिस्तान जो है वो बेल्ट एंड रोड के इन मंसूबों को मज़ीद तरक्की देने का ख़्वाह है, जिसमें कराची ही के लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने चीनी क़यादत से रिक्वेस्ट की है कि कराची सर्कुलर रेलवे जो है उसको फ़ाल करने में चीनी हुकूमत जो है अपना ताउन एक्सटेंड करे। इस साल के आगाज़ से चीन ने 4 ममालिक जिनमें निकारागुआ, शाम, अर्जेंटाइन और मलावी शामिल हैं, इनके साथ बेल्ट एंड रोड के बैनुल हुकूमती ताउन की दस्तावेज़ात पर दस्तखत समेत दीगर शराकतदारों के साथ भी ताउन को मुसलसल तोसी दी है। अगर हम बात करें इस पहली तिमाही की मौजूदा साल की, तो चीन यूरोप माल बरदार ट्रेनों ने 3630 ट्रेनें चलाईं और तकरीबन 3.5 लाख कंटेनर्स की नकलो हमल की गई, जिसमें पिछले साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में बिल तरतीब 7% और 9% का इजाफा हुआ। ट्रेन्स का माहाना हजम मुसलसल 23 महीनों से 1000 ट्रेनों से ऊपर रहा, जिससे आलमी सनती चेन और सप्लाई चेन के इस्तेहकाम को मौसर तरीके से यकीनी बनाया गया। शायद साहब, पाकिस्तान में मुख्तलिफ दोस्तों से हमारी बात होती है जो चीन के साथ बिज़नेस में इन्वॉल्व हैं, किसी न किसी हवाले से यहाँ कारोबार करते हैं। उनकी जो सबसे बड़ी परेशानी है वो ये है कि कोविड के दौरान जो उनको यहाँ से सप्लाई चेन थी वो डिस्टर्ब रही। उसकी वजह यह है कि चीन ने तकरीबन क्लोज्ड बॉर्डर मैनेजमेंट रखी वबा की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी की वजह से। तो चीन और पाकिस्तान के दरमियान यकीनन CPEC के तहत बहुत से मंसूबे फ़ाल हैं और बेहतरीन अंदाज में जारी हैं, लेकिन जो नकलो हमल का निज़ाम है उसमें जो चीज़ कमी महसूस की जाती है जिसकी वो है ML1। तो तवक्को हम करते हैं कि आने वाले दिनों में ये मंसूबा भी ना सिर्फ शुरू होगा बल्कि जल्द अज जल्द पाया तकमील तक पहुँचेगा। जब ये ट्रेन रूट्स शुरू होंगे तो फिर हमें ये सप्लाई चेन डिस्टर्ब होती हुई नज़र नहीं आएगी। हमने देखा कोविड-19 के दौरान जब यूरोप पूरी दुनिया से कटा रहा, लेकिन चीन की जानिब से उसको ये जो इक्तिसादी वेन थी इसके ज़रिए सप्लाई जो है वो जारी रही। जी, और अच्छी बात यह है ज़ुबैर साहब कि चीन को वैसे भी हम कहते हैं दुनिया की ये फैक्ट्री है और ऐसे में चीनी मसनूआत ने जहाँ इंसदाद वबा में अहम किरदार अदा किया, तो आप कह सकते हैं वहाँ के जो सनती पहिया है मुख्तलिफ ममालिक का उसको रमा रखने में ये जो चीनी कारखाने हैं, चीनी कंपनीज़ ने अहम किरदार अदा किया। और इससे पाकिस्तान भी ज़ाहिर है, जैसे आपने जिक्र किया ML1 मंसूबे का, तो हम देख रहे हैं कि गुजरते वक्त के साथ अब हम पाकिस्तान चूँकि मेट्रो के दौर में भी दाखिल हो चुका है, हम उम्मीद करते हैं कि मुस्तक़बिल में मज़ीद ऐसे मंसूबे सामने आएंगे और इन मंसूबों के समरात जो हैं वो पाकिस्तानी अवाम तक भी मुंतकिल होंगे और जो असल तसव्वुर है बनी नौ इंसान के हमनसीब समाज का उसको हम पनपता और फलता फूलता देखेंगे। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हो या चीन का दीगर कोई भी तरक्याती मॉडल हो, चीन सब्ज़ तरक्की और माहौल दोस्त तरक्की की बात करता है। तो यही बेल्ट एंड रोड के हवाले से भी कहा गया है
کے 3 پہلوؤں سے سبز ترقی کے دی بیلٹ اینڈ روڈ کی 15 اہم امور متعین کیے گئے ہیں۔ ان میں سبز ترقی کے اہم شعبوں میں مربوط تعاون کا فروغ، بیرون ملک منصوبوں کی سبز ترقی کے فروغ کو مربوط کرنا اور ہم آہنگ اور سبز ترقی کے لیے حمایت اور گارنٹی کے نظام کو بہتر بنانا شامل ہے۔ تو دی بیلٹ اینڈ روڈ جو ہے وہ نہ صرف سماجی اور اقتصادی ترقی کا ایک علمبردار منصوبہ بن کے سامنے آیا ہے، بلکہ یہ ماحول دوست ترقی کے لیے ایک رہنما پالیسی اور اصول بھی دنیا کو دے رہا ہے۔ سامعین محترم، یہاں ایک نغمہ سنتے ہیں، اس کے بعد اپنے اگلے موضوع کی طرف بڑھیں گے۔ sanam janam, anari sistanam, bibi sanam janam, anari sistanam, badarwaze taj kurban jai sanam janam, badarwaze taj kurban jai sanam janam, bibi sanam janam, anari sistanam, bibi sanam janam, anari sistanam, badarwaze taj kurban jai sanam janam, badarwaze taj kurban jai sanam janam. Stone
صنم جانم آنار سیستانم هوای معتدل چون ریشه دارم ببی صنم جانم آنار سیستانم همه گلهای عالم برگ خوش کرد ببی صنم جانم آنار سیستانم تو در باغ خیالیم ریشه داری ببی صنم جانم آنار سیستانم ببی صنم جانم آنار سیستانم ببی صنم جانم آنار سیستانم دم دروازه تاج کرم جای صنم جانم دم دروازه تاج کرم جای صنم جانم ببی صنم آنار سیستانم ببی صنم آنار سیستانم ببی صنم جانم 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 آنار سیستانم با دروازه تاج کرم جای صنم جانم वेलकम बैक सामीन मोहतरम, आपको खुश आमदीद कहते हैं। आप प्रोग्राम समात फरमा रहे हैं चीन शाहराह तरक्की पर ज़ुबैर बशीर और शाहिद अफराज खान के साथ। शाहिद साहब, जो माशी अशारिये हैं वो किसी भी मुल्क की तरक्की को मापने का एक बेहतरीन पैमाना होते हैं। पहली जो सेमाही है मौजूदा साल की, उसके जो माशी अशारिये सामने आए हैं उनके मुताबिक चीन की जो मुस्तहकम तरक्की है उसका सफ़र जारी और सारी है। चीन के कौमी इदारा बराए शुमारियात ने साल 2022 की पहली सेमाही में चीनी मईशत की सूरत हाल के बारे में बताते हुए कहा कि पहली सेमाही में चीनी मईशत मुस्तहकम तौर पर आगे बढ़ रही है। इब्तदाई आदाद शुमार के मुताबिक पहली सेमाही में चीन का GDP 270 खरब युआन तक पहुंच चुका है, जिसमें पिछले साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में 4.8%, जबकि साल 2021 की चौथी सेमाही के मुकाबले में 1.3% का इजाफा हुआ। बुनियादी सनत की वैल्यू एडेड में पिछले साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में 6% का इजाफा हुआ। सानवी सनत की वैल्यू एडेड 106 खरब युआन रही, इसमें 5.8% का इजाफा हुआ। सर्विस इंडस्ट्री की वैल्यू एडेड जो है उसमें 4% का इजाफा हुआ और ये 153 खरब युआन रही। पहली सेमाही के दौरान कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में पिछले साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में 1.1% का इजाफा हुआ, जिसमें शहरी इलाकों में 1.2% और दही इलाकों में 1.7% का इजाफा हुआ। अगर हम इन तमाम माशी इंडिकेटर्स की बात करें, इन तमाम फिगर्स की बात करें जो चीन की इस तरक्की की अक्कासी करते हैं, तो ये हमें बताता है कि वबा के बाद चीन ने किस तरह अपनी ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी की वजह से न सिर्फ वबा पर काबू पाया बल्कि मईशत के पहिए को भी रवां दवां किया। जी, इसमें अच्छी बात यह ज़ुबैर साहब कि एक ऐसे वक्त में जब दुनिया भर की मईशतें शदीद तनज़ली का शिकार हैं, गिरावट का शिकार हैं, और ऐसे में चीनी मईशत आप कह सकते हैं वाहिद दुनिया में एक बड़ी मईशत है जहाँ पर मुस्तहकम तरक्की का रुझान जो है वो बरकरार है। और 27 ट्रिलियन युआन बहुत बड़ा फिगर है इस लिहाज से कि अभी चूँकि पहली सेमाही है तो इससे कम से कम आइंदा इस पूरे साल के लिए एक मजबूत बुनियाद भी फराहम कर दी गई है। और जनाब, यहाँ कुछ अदाद शुमार आपके साथ शेयर करते हैं जिनमें चीनी अवाम की आमदन में इजाफे के बारे में आपको बताएंगे। चीन के कौमी इदारा शुमारियात की जानिब से जारी किए गए इन अदाद शुमार के मुताबिक मुल्क भर में फ़ी गज़ काबिल इस्तेमाल आमदन जो है वो 10,345 युआन रही, जिसमें नॉमिनल शरह नमू जो है वो 6.3% रही। अगर हम इसको पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करें तो ये 3 लाख पाक रुपीज़ के लगभग बनती है। तो ये जाहिर करता है कि चीन में जो आमदन है आम लोगों की वो अब किस तरह बेहतर होती चली जा रही है। इसके अलावा चीन में जो देहात में रहने वाले 50 करोड़ बाशिंदे हैं उनकी आमदन में भी मुस्तहकम इजाफा देखने में आया है। 2022 की पहली सेमाही में दही बाशिंदों की फ़ी गज़ काबिल इस्तेमाल आमदन जो है वो 5,778 युआन तक रही, जिसमें नॉमिनल शरह नमू 7% है। तो अगर देहात में हम ये देखते हैं कि एक घर में अगर 4 अफराद हैं तो ये आमदन आप 20,000 30,000 RMB के आसपास पहुंचती है।
जो ये बताता है कि पूरा ख़ानदान जो है वो बहुत बेहतर अंदाज में न सिर्फ खुद तरक्की कर रहा है बल्कि अपने मुल्क की तरक्की में भी अहम हिस्सा डाल रहा है। जी, और सबसे अच्छी बात यह है ज़ुबैर साहब कि हम हमेशा अक्सर अपने प्रोग्राम्स में इसका तज़किरा करते रहते हैं कि जो चीन की तरक्की है उसमें यकसानियत इस लिहाज से आप कह सकते हैं कि एक मुसावीपन नज़र आता है आपको शहरी और देही तरक्की में। और अभी जिन अदाद शुमार का आपने हवाला दिया वो भी इस हवाले से आयनादार हैं कि चीन जो है यकसा बुनियादों पर शहरी तरक्की को और देही तरक्की को आगे बढ़ा रहा है ताकि दोनों अतराफ़ के जो बाशिंदे हैं वो चीन की तरक्की के समरात से सही मानों में फ़ायदा उठा सकें। और एक शोबा जिसका सामिन मोहतरम हम बारहा जिक्र करते हैं जो आज की दुनिया में अपनी हकीकत मुसल्लम करवा चुका है वो शोबा है खिदमात का शोबा। चीन ने सर्विसेज जो हैं इनकी आउटसोर्सिंग है जो उसके हवाले से भी अपनी तरक्की का रुझान बरकरार रखा है। चीनी कंपनियों ने पहले 3 महीनों में तकरीबन 488.1 बिलियन युआन जो तकरीबन 75 अरब अमरीकी डॉलर के बराबर बनते हैं इतनी मालियत की जो सर्विसेज हैं उनकी आउटसोर्सिंग के मुआहदों पर दस्तखत किए जिनमें पिछले साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में 10.3% का इजाफा हुआ। इसी मुद्दत के दौरान जो मुतवक्का मुआहदे हैं उनकी मालियत जो है वो 318 बिलियन युआन तक पहुंच गई जिसमें पिछले साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में 17.2% का इजाफा हुआ है। आउटसोर्सिंग जो है इसको थोड़ा सा डिफ़ाइन आप अगर करें तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी, इससे बुनियादी तौर पर मुराद यही ली जाती है ज़ुबैर साहब कि जिसमें जो इदारे होते हैं बैरूनी इदारे उनकी खिदमात ली जाती हैं उन्हें यहाँ पर मदऊ किया जाता है लेकिन जो खिदमात फ़राहम करने वाले लोग होते हैं वो मुल्क के अंदर होते हैं। तो ये आउटसोर्सिंग का बुनियादी एक तसव्वुर है कि जिसमें आप कह सकते हैं कि बैरूनी सरमायाकारी को राग़िब करने का भी ये भी एक मकबूल तरीका है जिसमें मुकामी वसाइल की तरक्की से फिर इसको आगे बढ़ाया जाता है। और पाकिस्तान में हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो ह्यूमन कैपिटल है और ख़ास तौर पर यूथ वो पढ़ी लिखी यूथ बहुत ज़्यादा है तो हमारे पास अपनी इन सर्विसेज को आउटसोर्स करने के बहुत से वसी मौके मौजूद हैं और पाकिस्तान में कई इदारे इस वक्त इस हवाले से काम भी कर रहे हैं। सामीन मोहतरम यहाँ एक नगमा सुनते हैं और उसके बाद अपने अगले मौजू की तरफ बढ़ेंगे। मन झूम झूम तन झूम झूम मन झूम झूम तन झूम झूम मन झूम झूम गाए मन झूम झूम तन झूम झूम मन झूम झूम गाए। बना के मैं पहनूं तुझे दिल घर है खुदा का ना छोड़ इसे मांगू मैं अब क्या रब से पाया है तुझको जब से इश्क तेरा हम पे तारी रक्स में जहां कर सजदा एक खुदा को पढ़ो कलमा या मैं दुआ दूं दोनों ही एक खुदा मोहब्बत कर सजदा एक खुदा को पढ़ो कलमा या मैं दुआ दूं दोनों ही एक खुदा मोहब्बत। अपनी धड़कन तेरे तड़पने में फर्क नहीं अब मेरे दिल के धड़कने में रोग मेरा बढ़ता जाए कोई तो संभाले ना राहत मिले अब हमको दिल के दहकने में मांगू मैं अब क्या रब से पाया है तुझको जब से इश्क तेरा हम पे तारी रक्स में जहां कर
सजदा एक खुदा को पढ़ो कलमा या मैं दुआ दूं दोनों ही एक खुदा मोहब्बत कर सजदा एक खुदा को पढ़ो कलमा या मैं दुआ दूं दोनों ही एक खुदा मोहब्बत चौखट से अपने गम छुपा लेंगे हम झूठी मुस्कुराहट से भीगी भीगी पलकों में अक्स तेरा रहता है आँख से छलक जाए तो प्यार तेरा बहता है मांगू मैं अब क्या रब से पाया है तुझको जब से इश्क तेरा हम पे तारी रक्स में जहाँ साथ साथ चलने वाले राहें क्यों बदलते हैं राहें जब बदल जाएं तो रास्ते भटकते हैं दूर हो नजर से चाहे दिल के पास होता है चाहे दो जहां भी पालो वो ही खास होता है मांगू मैं अब क्या रब से पाया है तुझको जब से इश्क तेरा हम पे तारी रक्स में जहाँ कर सजदा एक खुदा को पढ़ो कलमा या मैं दुआ दूं दोनों ही एक खुदा मोहब्बत कर सजदा एक खुदा को पढ़ो कलमा या मैं दुआ दूं दोनों ही एक खुदा मोहब्बत मन झूम झूम तन झूम झूम मन झूम झूम गाए तन झूम झूम मन झूम झूम मन झूम झूम गाए। वेलकम बैक सामने मोहतरम, आपको खुशामदीद कहते हैं। आप प्रोग्राम समाअत फरमा रहे हैं चीन शाहराह तरक्की पर ज़ुबैर बशीर और शाहिद अफराज खान के साथ। शाह साहब, चीन में जो मुल्की सरमायाकारी है इसमें भी नुमाया इजाफा हुआ है। हम ये देखते हैं कि मुख्तलिफ शोबाजात जिनमें नकलो हमल का शोबा हो, जिनमें मैनुफैक्चरिंग का शोबा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का शोबा हो, हर शोबे में जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है। जी, और ये अच्छी बात है ज़ुबैर साहब के देखें, हम अक्सर जब हवाला देते हैं तो बैरूनी सरमायाकारी के हवाले से बात करते हैं। दूसरी जानिब हम अक्सर अब जब जिक्र करते हैं तो दोहरी गर्दिश का हम अक्सर हवाला दिया करते हैं। तो ये वो दोहरी गर्दिश के समरात ही हैं कि जो चीन में मुल्की सरमायाकारी है, जो मुल्की इदारे हैं, इनको भी ताकत मिल रही है। और चीन चाहता है कि जो मल्टी नेशनल कंपनीज़ हैं अगर वो चीन में काम करने आएँ तो इससे जो मुकामी इदारे हैं उनकी इस्तादेकार में भी इजाफा हो, उन्हें भी कुछ सीखने को मिले और वो भी तरक्की की राह पर आगे बढ़ सके। सामने मोहतरम, चीन के कौमी तरक्याती और इस्लाहाती कमीशन के मुताबिक रवां साल के पहले 2 महीनों में कौमी सरमायाकारी में 12.2% का इजाफा हुआ, जिसमें 2021 की निस्बत 7.3% पॉइंट्स का इजाफा हुआ। मैन्युफैक्चरिंग सरमायाकारी ने गुज़श्ता साल ही से तेज़ रफ्तार बहाली को जारी रखा और सरमायाकारी की तरक्की के लिए एक अहम मुहर्रिक बन चुका है। इंफ्रास्ट्रक्चर में सरमायाकारी 8.1% इजाफे के साथ मुस्तहकम और बेहतर रही, जिसमें पिछले साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में 7.7% पॉइंट्स का इजाफा हुआ। पहली तिमाही में नकलो हमल के बुनियादी ढांचे के शोबे में मुअस्सर सरमायाकारी में इजाफा हुआ, जिसने मईशत के हमवार ऑपरेशन में भरपूर मदद फराहम की।
इसी अरसे में बैंकिंग इंडस्ट्री के कुल मुल्की असासे 351.1 ट्रिलियन युआन रहे, जिसमें पिछले साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में 8.9% का इजाफा हुआ। इंश्योरेंस इंडस्ट्री के कुल असासे 25.5 ट्रिलियन युआन रहे, जिनमें पिछले साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में 2.6% का इजाफा हुआ। तो ये आपकी जो गुफ्तगू थी, ये वो आदाद शुमार हैं जो ना सिर्फ उस गुफ्तगू को सेकंड करते हैं बल्कि ये बताते हैं कि किस तरह हर शोबे में तरक्की जो है उसका अमल आगे बढ़ रहा है। और यहाँ जो दोहरी गर्दिश है जिसका हम गुज़श्ता 1-1.5 साल से जिक्र सुन रहे हैं, इसने जो सरमाया है उसको सर्कुलेशन में रख के ना सिर्फ तरक्की के मौके पैदा किए हैं बल्कि चीन के GDP ग्रोथ में भी अपना अहम किरदार अदा किया है। जी, और अच्छी बात यह ज़ुबैर साहब कि चीन की कोशिश है कि मुसलसल जो ऐसी सरमायाकार दोस्त पॉलिसियाँ अपनाई जाएँ और सरमायाकारों को उनके लिए एक साजगार माहौल मैसर किए जाए, पॉलिसी साजी की बुनियाद पर भी या फिर मालियाती खिदमात की फराहमी की बुनियाद पर भी। तो ये वजह है कि हमने देखा कि चीन में जो है आप कह सकते हैं कि ख़ुद रोज़गार की जानिब लोग बढ़ रहे हैं। यहाँ पर लोग जब ग्रेजुएशन के बाद जब तलबा आते हैं तो उनकी पहली तरजीह अब यही बन चुकी है कि वो अपना कारोबार करें। बुनियादी वजह यही है कि जो चीन की आप कह सकते हैं माविन पॉलिसियाँ हैं। बिल्कुल जनाब, और इन्हीं मावन पॉलिसियों में से एक पॉलिसी जो है वो हैं चीन की नुमाइशें, मेले जो कारोबारी सरगर्मियों को फ़रोग़ देने में बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं। हम हर साल देखते हैं कि चीन में कई आलमी नुमाइशें मुनक्किद की जाती हैं जो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट एक्सपोज होती हैं। इसके अलावा चीन में मुख्तलिफ़ किस्म के मुकामी और इलाकाई तिजारती मेले मुनक्किद किए जाते हैं जिनमें मुल्क भर से आए हुए जो ताजिर हैं वो अपनी मसनूआत मुतारिफ़ करवाते हैं और फिर ये मसनूआत जो हैं वहाँ से दुनिया भर में जाती हैं और इन छोटी छोटी कंपनियों को अपनी चीज़ों को मुतारिफ़ करवाने का मौका मिलता है। और दुनिया भर से आए हुए जो सरमायाकार हैं वो अपनी मसनूआत चीन में लेके आते हैं। यूँ एक मुसाबकती माहौल में दुनिया को आगे बढ़ने के मौके दिए जाते हैं। पाकिस्तान में मुझे याद है लाहौर शहर में एक कौमी सनती नुमाइश हर साल मुनक्किद की जाती थी जी। और उस कौमी सनती नुमाइश के जो असरात थे वो इतने ज़बरदस्त हुआ करते थे कि बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं जो पहली दफ़ा वहाँ लॉन्च होती थी और वो प्रॉस्पेक्ट्स तलाश करती थी पाकिस्तान भर में अपने लिए। और उस नुमाइश में अरब ममालिक से बहुत से ताजिर आया करते थे और दुनिया के कई ममालिक से लोग वहाँ आते थे। मुझे याद है उस वक्त पाकिस्तान के आलाते जराही, स्पोर्ट्स का सामान, गुजरात शहर के बने हुए पंखे, मोटरें, इस तरह की चीज़ें जो हैं वहाँ नुमाइश के लिए लाई जाती थी। ना सिर्फ जब वो नुमाइश ख़त्म होने वाली होती थी मुकामी लोगों को सस्ते दामों मेयारी चीज़ें मिलती थी बल्कि उन कंपनियों को अपने आप को दुनिया भर में मुतारिफ़ करवाने का एक मौका मिलता था। तो ये नुमाइशें, ये मेले जो हैं वो किसी भी मुल्क की तरक्की में बहुत नुमाया किरदार अदा करते हैं। इस पर आपकी राय जानेंगे लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक खूबसूरत नगमा। सबनू समझ के की करना है दिल नू ऐ समझावा तू झूम 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 तू झूम 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 मैं दीवानी कुछ ना जाना मस्त होके गावा दुनिया राजी करके कमले फिर भी चैन नहीं आना सारी खुशियां मिल जावन ते पिछे की रह जाना सारी खुशियां मिल जावन ते पिछे की रह जाना तेरे बस में कुछ भी नहीं है दिल नू समझावा तू झूम 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 ओ तू झूम झूम तू झूम झूम तू झूम
ਅਸਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਹੈ ਜੀਣਾ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਗੁਮਾਨਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਕੀ ਖੁਦ ਕੋ ਸ਼ਰਮਾਨਾ ਦੁਨੀਆ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਲਈਏ ਫਿਰ ਵੀ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਜੋ ਹੈ ਤੇਰਾ ਲੱਭ ਜਾਏਗਾ करके कोई बहाना तेरे बस में कुछ भी नहीं है दिल नू मैं समझावा तू झूम 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 तू झूम 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 तू झूम 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 ओ तू झूम 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 वेलकम बैक सामीन मोहतरम, आपको खुशामदीद कहते हैं। आप प्रोग्राम समाअत फरमा रहे हैं चीन शाहराह तरक्की पर ज़ुबैर बशीर और शाहिद अफराज खान के साथ। शाहिद साहब, वक्फे पर जाने से पहले हम जो सनती नुमाइशें हैं या तिजारती मेले हैं उनकी अहमियत पर बात कर रहे थे। जी, और अच्छी बात ये भी ज़ुबैर साहब कि हमने देखा कि यहाँ पर चीन में अगर इम्पोर्ट एक्सपो हो या फिर खिदमाती जो तिजारत का मेला हो या फिर कैंटन फेयर हो या फिर दीगर जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी सरगर्मियाँ हों, उसमें जो पाकिस्तानी सनतकार हैं वो हमेशा शरीक रहे हैं। और ये अच्छी बात है कि इससे उन्हें ये प्लेटफॉर्म भी मिलता है कि वो जो अपनी मसनूआत है दुनिया भर के सार्फिन से मुतारिफ़ करवा सकें। और आप कह सकते हैं कि इससे जो पाकिस्तानी मसनूआत हैं उनकी आलमी मांग में भी इजाफ़ा होता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो इनसे जो पाकिस्तानी मसनूआत की वैल्यू एडिशन है उस लिहाज से हम देखते हैं कि थोड़ी सी कमी रही है पाकिस्तान में। तो इन सनती नुमाइशों से ये अच्छा मौका मिलता है कि वैल्यू एडिशन की जानिब जाया जा सके और अपने जो सनत है उसको जदीद खतूत पर इस्तवार किया जा सके। बिल्कुल जनाब, और आपने तस्करा किया कैंटन फेयर का, तो रवां साल 131वां कैंटन फेयर जो है वो ऑनलाइन शुरू हुआ। अंदरून और बैरून मुल्क से तकरीबन 25,500 नुमाइश कुनंदगान इस मेले में शरीक हैं।
जिन में 2.9 मिलियन से ज़ायद मसनूआत की ऑनलाइन नुमाइश की जा रही है। इनमें तकरीबन 9 लाख नई मसनूआत और 4,80,000 से ज़ायद सब्ज़ और कम कार्बन मसनूआत शामिल हैं। इस मेले की इफ्तिताही तकरीब में जब तकरीर की गई वहाँ पर चीनी आला हुक्काम की जानिब से, तो उन्होंने कहा कि इस तरह के मेले बैरूनी दुनिया के लिए चीन का दरवाज़ा जो है उसको मज़ीद वसी कर रहे हैं। 2021 में जो कैंटन फेयर मुनक़िद हुआ था उसमें चीन की मसनूआत की कुल तिजारत 6 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर से तजावुज़ कर गई थी और इक़्तिसादी तरक्की की शरह जो है वो 8.1% तक पहुँच गई थी। कैंटन मेले को इस वक्त चीन में एक दरीना और सबसे बड़े जामे बैनुल अक़वामी तिजारती इवेंट का दर्जा हासिल है। इसने दुनिया भर के 220 से ज़ायद ममालिक और ख़ित्तों के साथ तिजारती ताल्लुकात कायम किए हैं और मजमूई बरामदी कारोबार 1.4 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर से तजावुज़ कर चुका है। मुतअद्दिद ममालिक के चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने मेले के हवाले से मुस्बत ख़यालात का इजहार करते हुए कहा कि कैंटन मेले ने दुनिया भर के ममालिक के दरमियान तिजारत को मुअस्सर तरीके से फ़रोग़ दिया है। यहाँ सामीन मोहतरम कुछ तस्करा करते हैं इस तरह के मेलों और तिजारती फेयर्स में जो अहम चीज़ है किरदार अदा करती है वो है छोटी सनतें। चीन में हम ये देखते हैं कि स्मॉल इंडस्ट्रीज़ जो हैं ये मुल्क की तरक्की में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा कर रही हैं। चीन में जो इलाकाई सनतें हैं इनमें वो सकाफ़ती सनतें भी शामिल हैं जो हज़ारों बरसों से वहाँ काम कर रही हैं, लेकिन चीन ने उन्हें जदीद खतूत पर उस्तवार किया है। फिर उसके बाद छोटे छोटे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो बड़े इदारों के साथ मुंसलिक हैं। अगर हम बैदू सेटेलाइट नेविगेशन सिस्टम की बात करें तो ये बज़ाहिर एक बड़ा ग्रुप है जो चीन के अंदर और दुनिया भर के अंदर सेटेलाइट नेविगेशन की खिदमात फराहम कर रहा है, लेकिन इस इदारे से जुड़े सैकड़ों ऐसे छोटे छोटे इदारे हैं जो उनको बाई प्रोडक्ट्स तैयार कर देते हैं। हम हवावे कंपनी का नाम जानते हैं जो मोबाइल फ़ोन बनाने वाली चीन की सबसे बड़ी कंपनी है और इंटरनेट ख़ासतौर पर 5G इंटरनेट में अपना कोई सानी नहीं रखती। इससे मुंसलिक भी ऐसे कई छोटे छोटे इदारे हैं जिनमें कई पेटेंट ऐसे हैं जो महज एक शख्स की जानिब से रजिस्टर्ड करवाए गए हैं और वो इन कंपनियों की तरक्की में शामिल होकर ख़ुद भी तरक्की कर रहे हैं। तो जो छोटी सनतें हैं इनको फ़रोग़ देने के लिए चीनी हुकूमत ने हमेशा बहुत ही ज़्यादा साजगार माहौल मुहैया किया है, क्योंकि ये कंपनियां न सिर्फ रोज़गार के मौके पैदा करती हैं बल्कि शहरों पर बढ़ते हुए आबादी के बोझ को भी कम करती हैं। जी, और अच्छी बात यह ज़ुबैर साहब कि इस वबाई सूरत हाल में अगर जायज़ा लिया जाए तो हम कह सकते हैं कि जो चीन की जानिब से मुनक्किद करवाए जाने वाले मेले हैं इन्होंने सनतों को बिलखुसूस छोटी सनतों को एक नई जान दी है। सामीन मोहतरम, इसी खूबसूरत बात पर आज के इस प्रोग्राम से आपसे इजाज़त चाहते हैं। प्रोग्राम के हवाले से अपनी आरा का इजहार urd@cri.com.cn पर ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद ख़बरों, तज्ज़ियों और तबसरों के लिए विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट urdu.cri.cn। ज़ुबैर बशीर और शाहिद अफराज खान को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद। अल्लाह हाफिज़। चाइना रेडियो इंटरनेशनल, एक नए आगाज के साथ एक नया अंदाज, वही जोश, वही जज्बा, वही वलवला। मीडियम वेव्स, शॉर्ट वेव्स और FM पर एक साथ हमारी नशरियात आपके लिए, पाकिस्तान के लिए, रोजाना सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक FM 98 दोस्ती चैनल पर, इस्लामाबाद और लाहौर से एक साथ। चाइना रेडियो इंटरनेशनल मीडियम और शॉर्ट वेव्स पर भी एक साथ, सिर्फ आपके लिए, पाकिस्तान के लिए। सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे तक शॉर्ट वेव 7240 किलोहर्ट्ज और 9695 किलोहर्ट्ज पर। सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे तक शॉर्ट वेव 9450 किलोहर्ट्ज और 11650 किलोहर्ट्ज पर। रात 10 बजे से लेकर 11 बजे तक मीडियम वेव 1422 किलोहर्ट्ज, शॉर्ट वेव 9800 किलोहर्ट्ज और 11660 किलोहर्ट्ज पर। और रात 11 बजे से 12 बजे तक मीडियम वेव 1422 किलोहर्ट्ज, शॉर्ट वेव 7285 किलोहर्ट्ज और 9535 किलोहर्ट्ज पर। इसके अलावा ताज़ा तरीन खबरों, हालात हाज़रा, दिलचस्प खबरों, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स, डॉक्यूमेंट्रीज और नित नई मालूमात के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा फेसबुक पेज FM 98 दोस्ती चैनल। CRI की नशरियात में आप भी शामिल हो सकते हैं। ईमेल कीजिए urd@
CRI.com.cn پر. وزٹ کیجیے چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی ویب سائٹ urdu.cri.cn. چائنا ریڈیو انٹرنیشنل، ہر لمحہ آپ کے ساتھ ساتھ.